اس خوبصورت خوشنودی میں کہ جیسے داؤد ہمارے بزرگ کہتے ہیں میں خوش ہوا جدوں مینوں آکھن لگے، تو اب جو آ چکے ہیں کتنے لوگ محسوس کرتے ہیں ہم خوش ہیں؟ ہالینویا، سب اپنے ہاتھ لہرائے جو خوش ہیں۔ اگر گھر سے دکھی ہے لیکن باپ کے گھر میں خوشی ہے۔ آئے ہم ایک تلاوت کے بعد بیٹھ جائیں گے سبھی لوگ۔ پیدائش 3 باب 9 آیت سے آج کے کلام کا عنوان جیسے لاسٹ گزرے ہوئے سنڈے میں یاد ہے کسی کو؟ گرچہ ہم بھول جاتے ہیں لیکن یہ اچھی عادت نہیں ہے، یاد رکھنا اچھی عادت ہے، اچھی بات ہے۔ لاسٹ سنڈے ایک سیریل ہمارے درمیان خدا کے کلام میں ظاہر ہوا، اور وہ کیا تھا؟ پسند کی شادی، پسند کی شادی۔ اور بائبل میں سے اس کی پرمیشن ملی تھی یا سختی ملی تھی؟ منع کیا گیا تھا، کہا گیا تھا کہ کر لے۔ اور آپ اس میسج کو یوٹیوب پہ جا کے پاسٹر عزیز کے نام کا جو چینل ہے اب وہاں پہ ضرور سنیے گا، اسے اپلوڈ کیا گیا ہے۔ جو لوگ پسند کی شادیاں کرتے ہیں بائبل کے مطابق پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے اور اس سے بڑھ کر ان کا نقصان کیا ہوتا ہے، یا خدا کے نزدیک ان کی کیا قدر رہتی ہے پھر۔ اور اسی میسج میں آج فل اینڈ فائنل تو نہیں ہم جائیں گے، لیکن تھوڑا حصہ آج ہم اور سیکھیں گے کہ اپنی مرضی، اپنی منمانی جب کوئی بھی بچہ کرتا ہے تو ماں باپ جو زندگی بھر کے لیے اس کے لیے بڑا پلان کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بچہ اپنی مرضی کی وجہ سے ان چیزوں سے، ان لوازمات سے فائدہ اٹھاتا ہے یا دکھ پاتا ہے۔ باپ اور ماں کی طرف سے نہیں، اپنی مرضی کی وجہ سے کیا پاتا ہے؟ بولے کیا پاتا ہے؟ تو آئیں ایک حوالہ کو تلاوت کریں گے آج بھی اسی کا چھوٹا سا ایک حصہ۔ میری مرضی یا اپنی منمانی یا اپنی خواہش کو درجہ دینا یا اپنے طریقے سے جینا، ایسے لوگوں کا حال بائبل مقدس کے مطابق کیا ہوتا ہے؟ گناہ ہوتا ہے، موت ہوتا ہے، بے ترتیبی ہوتی ہے۔ اور یوں لاسٹ سنڈے کچھ چیزیں رہ گئی تھی کہ کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، آج ہم ان کو بھی دیکھ لیں گے اور ایک حوالہ تلاوت کر لیں۔ پیدائش موسوی شریعت کی بکس میں سے یہ پہلی بک ہے، پیدائش 3 باب 9 آیت۔ جی پریز دی لارڈ، ہالےلویا۔ جی خادم جی کوئی ہے جو امیدوار جس نے نکالا ہو؟ ہم چاہتے ہیں آن لائن دیکھنے والے بھی، کوئی بھی جو جلدی یہاں سامنے آ سکے۔ چلے بھائی ارشد آ گئے ہیں، چلے ویلکم جی، پریز دی لارڈ۔ بھائی ارشد کے ساتھ مل کر ہم 9 آیت کو سنیں گے۔ تب خداوند نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ خداوند کی برکت ہو۔ آمین آمین۔ بیٹھنے سے پہلے ساتھ والے کو کیا پیغام دیں گے؟ کہیں خداوند تجھے پکار رہا ہے۔ ساتھ والا بھی کہے خداوند تجھے بھی پکار رہا ہے۔ اس کی آواز سن، خدا تجھے پکار رہا ہے، تو کہاں ہے؟ پھر آپ اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے آپ سے کہیں خداوند مجھے پکار رہا ہے۔ بہت شکریہ، سب لوگ بیٹھیں۔ بہت چھوٹا سا میسج ہوگا جو ہم اپنے گھر کے لیے لے کر جائیں گے، اپنے لیے لے کر جائیں گے، اور یوں لکھا جیتے رہو گے۔ ہالےلویا۔ کئی بار بزرگ دعا دیتے ہیں جیتا رہ، جیتی رہ، لیکن جینے کا بھید کس میں ہے؟ خداوند کے کلام میں۔ جینے کی جو برکت ہے، بلیسنگ ہے، وہ کس میں ہے؟ کہیں خداوند کے کلام میں۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ میں جیتا رہوں؟ تو آپ کا بھائی، آپ کا خادم پاسٹر عزیز آپ سے، اپنے آپ سے بھی کہتا ہے اس کے کلام کی روٹی کھا لے۔ ہالےلویا۔ روٹی کھانی تیرے نال یسو، او چول کھانے تیرے نال یسو، تیرے نام جلال یسو ناصریا، تیرے نام جلال یسو ناصریا، او روٹی کھانی تیرے نال یسو ناصریا۔ ہالےلویا۔
हालेलुया। आज का कलाम फिर से हम इसको खुदावंद की रहनुमाई में पाकरू में सीखते हैं। अपनी मनमानी, अपनी मर्जी या खुदा की मर्जी, अपनी पसंद या खुदा की मर्जी। आमीन। तो यहाँ पर कई लोगों का सवाल ये होता है जी, जब इंसान से गुनाह होता है खुदा उसे छोड़ देता है, खुदा उसे निकाल देता है, खुदा उससे दूर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आज की जो ये तलावत है, ये मेरे लिए और आपके लिए एक खास मैसेज है। गुनाह, गलतियां, खताएं धरती पर सभी से हो जाती हैं, लेकिन जो बनाने वाला मेकर है, जो रहनुमा है, जो होल्डर है, वो कभी भी मुझे और आपको छोड़ नहीं देता, निकाल नहीं देता, बल्कि क्या करता है? आवाज देता है। क्या देता है? आवाज देता है। ये गुनाह से पहले की बात नहीं है, ये आदम से और हवा से गलती खता होने के बाद की आवाज है। आदम को खुदा ने पुकारा, आदम को खुदा ने आवाज दी, और यीशु मसीह ने भी, खुदा बाप ने भी यीशु मसीह के बदन में आकर पाकरू में आवाज दी कि जिसके कान हो, जिसके कान हो। अब इसका मतलब क्या था? क्या वहां पर लोगों के कान नहीं थे? कान थे, पर वो उसकी आवाज सुन के क्या करते थे? इधर सुने थे, इधरों उन्होंने कहा पादरी लगे नहीं देंगे, और छो जी आज लगे नहीं, आपके लिए चंगे नहीं, ये आपके लिए। कई कलीसियाएं, कई कलीसिया में आने वाले लोग पास्टर साहिबान से भी, जो उनका बदन है, उनके मैनर से, उनके तरीकाकार से भी ठोकर खा के किसको छोड़ देते हैं? खुदा को, चर्च को छोड़ देते हैं। ऐसे लोग, बाइबल में क्या लिखा है उनके बारे में? रूहानी आदमी, रूहानी बातों के ख्याल में, और जिस्मानी आदमी। ये जिस्म वाले लोग होते हैं जो किसी पादरी की वजह से अपने खुदावंद को छोड़ देते हैं, किसी पादरी के किसी तरीका की वजह से अपने तेवर बदल लेते हैं। इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, किसी शख्स ने आकर यीशु से कहा, ऐ नेक उस्ताद। क्या यीशु नेक नहीं था? नेक था, और एक ही था, लेकिन जब तक बदन में रहा उसने अपने बदन का चर्चा नहीं किया, अपने बदन को नहीं दिखाया कि मैं नेक हूं या एक ही हूं। उसने कहा नेक एक ही, और वो खुदा है। हालेलुया। मैं और आप इस बदन में रहकर ना किसी को बदन से ठोकर दे, ना किसी के बदन की वजह से ठोकर खाए, बल्कि रूहानी आदमी इस ख्याल में रहे कि जीता रहेगा किससे? खुदावंद के नाम से। हालेलुया। सो आदम को खुदा ने पुकारा, आवाज दी, एक ऑप्शन दी। एक क्या दी? खुदा ऑप्शन देता है, लेकिन अगर हम वो भी मिस कर दे तो खुदा का कोई कसूर नहीं है। आज भी मेरे और आपके पास एक ऑप्शन है। उस वक्त ऑप्शन कब थी? जब उसने गुनाह कर लिया। जब आज भी ऑप्शन क्या है? हम गुनाह कर बैठे हैं, उस गुनाहगार से पैदा हुए हैं, इसलिए आज भी ऑप्शन मौजूद है। उस वक्त भी खुदा खुद आया, उस वक्त भी खुदा, आज भी वो अपने बेटे के रूप में खुद आया है। हालेलुया। आज भी वो अपने बेटे, अपने रूप में खुद आया है और आवाज दे रहा है, जिसके कान हो और सुनो। तो लिखा है, आज तुम उसकी आवाज सुनो तो जितने लगे ठीक लगे, भावे पति के खंबे नहीं लगे। और मैं सुने ठीक है, पादरियों का काम ही हुई है। नूह के दौर में भी एक ही पादरी, एक ही रहनुमा था। उसने उनको बताया, उसने उनको सुनाया, लेकिन बतेरों ने उसका मजाक उड़ाया। बतेरों ने उसके, और यार साधु पता नहीं, यीशु के साथ भी ऐसे हुआ। यीशु ने आके कहा, देखो खुदा की बादशाही
यूसुफ का बेटा है, सानू पता नहीं किसका बेटा मरियम का। वो किस पर निगाहें लगाए हुए थे? बोले उसके बदन पर। वो किसके बारे में जानते थे? बदन के बारे में। आज भी हो सकता है कोई किसी पादरी की वजह से, उसके बदन के किसी भी काम की वजह से खुदा से टूट चुका है, खुदा की रफाकत से कमजोर हो चुका है, चर्च फेलोशिप से रिश्तेदारों की वजह से पुराने आगे नहीं की आगे ने अजी थोड़ा जब बदन के लाम था सी और ये परसों जरा बत्ती को नहीं सी, पानी को नहीं, मैं नहाता नहीं। ये सब लवाजुमात क्या है? बदन। आज बड़ी खूबसूरत बात है, उस वक्त भी खुदा जानता था कि ये क्यों दरख्तों के पीछे छिप रहा है, ये क्यों मेरी आवाज का जवाब नहीं दे रहा। खुदा जानता था कि नहीं? क्या खुदा ने छोड़ दिया? नहीं, खुदा ने उस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक उसने उसकी खुदाबंदी का इनकार न कर दिया। बुराई करना एक तरफ है, लेकिन इस बुराई की वजह से खुदा से मुनहरिफ हो जाना ये खतरनाक हालत है। कुछ लोग चर्च नहीं आते, नहीं जी मैं शराब पीता हूं, नहीं जी मैं जो नशा करना हूं, नहीं जी मैं पाक शराकत नहीं लेनी है जब मेरी जिंदगी जो गुनाह है। वो कौन सी ताकत है, वो कौन सा ऐसा अमल है जो मुझे और आपको उस गुनाह से निकाल सकता है? कोई ऐसी ताकत नहीं है। एक ही ताकत है, और वो क्या है? उसके पास आए, उसको मौका दे। एक ही जबरदस्त वाक्य सिर्फ आपको पता, सबको बताना चाहता हूं। वो औरत जो 12 सालों से सब ताकतें लगा चुकी थी लेकिन शिफा नहीं मिली, और यहूदी दस्तूर के शरीयत के मुताबिक ऐसी औरत का घर आना तो दूर की बात है, और उसके बाद अपने शोहर अपने बच्चों को हर चीज से डिस्कनेक्ट रहना एक तरफ, यीशु को छूना तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन उसका इस हालत में भी जब उसे पता चल गया कि मेरी ताकतें सारी खत्म हो गई है, मेरी ताकतें सारी खत्म हो गई, पैसा खत्म हो गया तो समझे डॉक्टर मुक गए। इंसान को कब तक अपने इलाज पे फख्र होता है, अपने तरीके पे कब तक फख्र होता है? कहें जब तक पैसा है, जब तक जब पैसा नहीं रहा, अपने तरीके नहीं रहे, फिर उसे पता चल गया अब एक ही तबीब है, तो उसके बारे में उसकी पोशाक का पल्ला ही। बीमारों के बारे में हो सकता है लाइन में डॉक्टरों के लगना पड़े, डॉक्टर साहब मेरी बारी। जैसे हौज के किनारे 38 साल का मजदूर मफलूज बैठा था, इसी तरह दुनिया में बतेरे हम जैसे बदनी कमजोर लोग पता नहीं किस पर आस लगाए बैठे हैं, लेकिन एक है जो आज पुकार रहा है, आवाजें दे रहा है, ऐ आदम तू कहां है? और कौन से वो दरख्त और कौन से वो पत्ते हैं जिनके पीछे तू छिपा हुआ है? कितने लोग आवाज सुन रहे हैं? समझे आपका खादम बाप के, उसके बेटे के, उसके मेज पे खड़ा है, चाहे 1 घंटे के लिए चरवाहा हूं पर बाकी 11 घंटे फिर मैं भी भेड़ हूं। ये पादरी साहबान ऐसा नहीं करते। ऑनलाइन भी जो सुन रहे होंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगरचे आप पासवान है, खादम है, पर आप कहां से लिए गए हो? बोले कलीसिया में से। कहां से लिए गए हो? और कलीसिया कौन है? कहीं यीशु का बदन। फिर कलीसिया कौन है? बोले दुल्हन। हालेलुया। ये कभी नहीं हो सकता कि वो सारी उम्र चौधरी बना रहे, कोई बड़ा मिनिस्टर बना रहे, जी मैं था किया पादरी, मैं था किया बाकियों को ऐब दिखाता रहे, बाकियों को ऐब जताता रहे, गुनाह का इकरार करवाता रहे, खुद अपने आप को बाहर इकराता रहे। ऐसा हरगिज नहीं है। जब तक मैं और आप बदन में है, किस राह पर है? कामल हो नहीं गए बल्कि कामलियत की राह पर है। यही यीशु मसीह ने ईमानदारों को सिखाया है। अपने ऊपर फख्र न कर। और थोड़ा सा गुनगुना भी लेंगे। घमंडिया कोले ओ नहीं जाता, ना झूठिया नाल रखना यारी। घमंडिया कोले ओ नहीं जाता, ना झूठिया
में से किसी को अपने ऊपर किसी तरह का इंसार है, अपनी अक्लमंदी पर, अपने रुपये पैसे पर, अपनी किसी रियासत पर, तो आज मेहरबानी से आदम के हाल को देख ले, हवा के हाल को देख ले। कहा भी गया था कि तू ये अपनी मर्जी, अपने ऊपर भरोसा, आज गाया भी है ना, जिसने भरोसा तेरे सच्चे सुच्चे ना दे। हालेलुया। हमें उस पर इंसार करना है, उस पर डिपेंड करना है। फिर आप चाहे किस तरह के भी लोगों की नजर में है, उन्हीं के सामने खुदा आपको बुलंद करेगा, उन्हीं के सामने खुदा आपको खड़ा करेगा कि ये है उसके अपनों जिन्हें तुमने रद्द किया, वो अपनों के पास आया और कबूल है, इन्होंने उसे रद्द किया। आज भी कौन रद्द करते हैं? मुझे आज भी याद है लाजरस, जो कि हलाल कमेटी के चेयरमैन मौलवी डॉक्टर अब्दुल हक कराची से पाकिस्तान रावलपिंडी हमारे पास आए, मुगलाबाद डोकसाडा बर्फखाना क्रिश्चियन कॉलोनी में, और उन्होंने कलाम सुनाया। उसने कहा तुसी हो घर दे मसीह, तुसी हो लाडले। कहता हमसे पूछो जब मसीह को कबूल किया है, तजाब डाल डाल के नाखन जलाए गए, दाढ़ी को नोचा गया, कई तरह से जख्मी किया गया, और जब अपनों ने भी घर से निकाल दिया तो वो बोलते थे, बात ये यहाँ से चली थी, बार बार गर्मियों के दिन थे, बच्चे पानी पीने जा रहे थे, चर्च में से उठ के बार बार लोग पानी पीने जा रहे थे, तो वो कह रहा था 1 घंटे की 20-40 मिनट की बात थी, आप कलाम नहीं सुन रहे, बल्कि किसकी फिक्र कर रहे हैं? बदन की। तो यीशु के बदन को देखिए, जितने अरसा धरती पे जवानी खूबसूरत होती है, जवानी के दिन बड़े जोरावर दिन होते हैं, जवानी के दिनों के अंदर बड़ी शाइन होती है, लेकिन उसने अपनी सारी शाइन किसके हजूर पेश की है? किसके लिए पेश की है? अपना नाम लेके उसकी जवानी मेरे नाम। आज धरती की जवानी मेरी किसके नाम है? उसकी जवानी तो हो गई। यीशु मसीह खुदा के बेटे की जवानी किसके नाम है? जवानी में किसी को गुर्दा मांग ले, कहते मैं नहीं करूंगा भाई, तेरे गुर्दा दे दे तो मैं नहीं करूंगा। तो उसने कहा गुर्दा ही नहीं, मेरा दिल बदन रू जान भी तू ले। हालेलुया, हालेलुया। आज सोचा करें, जब भी आपकी आंखों से खता हो तो सोचा करें उसके चेहरे का क्या हाल हो गया। अगर बालों का कोई स्टाइल खराब हो जाए, ठीक है, या कुछ भी हाल हो जाए, तो वो आपको आपकी आंख से नहीं देखेगा, वो कहेगा मैं नूर हूं, तू नूर है। वो ये नहीं कहेगा हम तो पास्टर जी पहला 2016 तो पहला तू बड़ा सोना सा है, जदों दी छेमा तेरी टुट के फिर बनिया हूं तू चिबाजिया बनिया हो, नहीं मेरे पसंद। मैं आपको बताना चाहता हूं 2016 के बाद मैं ज्यादा एंजॉय की लाइफ गुजार रहा हूं। 2016 के जोड़े जाने के बाद हो सकता बतेरों ने कहा यार पासे का कोई पता नहीं कदों अखा मीट जाए, पर मीट नहीं जाए। वो कहता है इनको बता तो आगे तो बाद ही जाऊंगा। हालेलुया। जवानी के फरजंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में। आप और मैं जो जवान है, किसकी फरजंदियत में आ जाए, किसके बेटे होने में आ जाए? जिसने अपना बेटा मुझे और आपको दे दिया, जिसके बेटे ने अपनी जवानी आपके और मेरे नाम कर दी है। हालेलुया। और आज वो पुकार रहा है, आज आप अपना नाम ले। चले मैं अपना लेता हूं, आप अपना नाम ले, क्योंकि बदन में है ना, कोई भी जलाली बदन तो नहीं है ना, ये तो फानी बदन है, कब फना हो जाए कोई पता नहीं है। लेकिन आए उस जलाल के बादशाह की आवाज के साथ जुड़ जाए और अपना नाम ले। खुदा आवाज दे रहा है, रूह को उसकी पुकार को सुने और आपने अपना नाम लेना है। जब आवाज आएगी ना कि आदम, आपने आदम की जगह क्या कहना है? अजीज। आपने अपना मुझे नहीं, सारों ने लटका देना, आपने खुद भी जरा थोड़ी सेटिंग में आना। 1 2 3 ऐ अजीज तू कहां गया था कि बाकी नाम को नहीं लाया। चलो जी 1 2 3। हो सकता है हम चर्च के बाद फिर कहते मैं लगा नजर अगले चौक, मैं लगा नजर खुदा को सलमा बुला रही है या बलमा बुला रहे हैं, वो हो जाता है ना ऐसा, पर ऐसा हरगिज़ नहीं।
कलाम में लिखा है जैसे नहाई हुई सुन। सब इधर देखिए, ये वीडियो कॉल है, जो साथ नीचे रख के सो रहे हैं वो इसका मतलब है वो ऑडियो कॉल के अंदर, ये खतरनाक हालत है। जब वो यूं होंगे ना, ये सच्ची बात है, कोई चाहे जितना मर्जी ना माने, वो उस वक्त में कुछ सोच भी रहा होता है और एक तो बस सुन रहा होता है, लेकिन वैसा नहीं सुन रहा होता जिसके कान हो कि वो ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲੰਘੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੁਰਾ? ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਘਸੋਣ ਕੋ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੁੱਕਾ ਛੁੱਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸਲਮ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਅਸਲਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਆਪ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਚੱਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਬਦਨ ਦਾ ਟੇਸਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਦਨ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ है। और कलाम की भाई साहब सुनने पे हाँ जी सुनने पे ये नहीं है। अखियां चुकना हमें बल पहाड़ा, मदद लई मैं यसुनु, ओ अखियां चुकना हमें बल शक ना मेरे अंदर से दूर हुआ। मैं आपको बताना, मैं बड़ी देर का ना तस्लीम साहब को ढूंढ रहा था, अपने बुजुर्ग को, यार आज कुर्सी नजर नहीं आ रही। फिर मैं कहना मास्क ले, मैंने लागत ही ही नहीं, पता नहीं यार रात छोटे पर अभी हमारे बुजुर्ग अल्लाह साहब ने कुर्सी छोड़ी, उनको बुलाया, मैं कहा यार थैंक यू यार, प्रेज द लॉर्ड। वही बुजुर्ग आज नीचे क्यों बैठे हैं, प्रेज होकर शुक्रगुजारी करें कि उन्होंने क्या सबब है, क्या वजह है, वो ज्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन कुर्सी से, और फिर अगर कोई कुर्सी छोड़ रहा है, बुलाने वाला भी कमाल और आने वाला भी। शुक्रगुजारी करते हैं अपने बुजुर्ग के लिए। थैंक यू गॉड ब्लेस यू। ऐ आदम तू, ऐ आदम तू आए। चंद बातें 5 से 7 मिनट है मेरे पास, उन बातों को हम सीख लेंगे। जो लोग अपनी मनमानी करते हैं, अपनी मर्जी करते हैं, लास्ट टाइम आप लोगों को बताया गया था, जो लोग ऑनलाइन भी यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं या जो लोग मेरे साथ है इस वक्त सामने फेसेस हैं, उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज खुदा के लिखा है उसका बेटा हमारे दरमियान रहा। लिखा कलाम क्या हुआ? क्योंकि गलती किससे हुई थी? जिस्म से। गलती किससे हुई थी? तो जिस्म को ठीक करने के लिए फिर वही कलाम जो उस वक्त आवाज आ रही है आदम तू, फिर हद हो गई खुदा के इंतजाम की इंसान को बचाने के लिए कि उसने फिर एक बदन का रूप ले लिया, और उस बदन का नाम क्या? बोले यीशु मसीह। खुदा के कलाम के जिस्म का नाम क्या? बोले यीशु मसीह। कलाम पाक के जिस्म का नाम क्या है? कितने लोग चाहते हैं कि मेरे जिस्म से सारा जलाल यीशु को दे? मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं। तो आए आज की इस पुकार को सुने कि आदम तू, बेशक गलती हो गई है, कल हुई, अभी या थोड़ी देर सुबह ताजी हुई है, आज के दिन में 1 घंटा पहले कोई खराबी रास्ते में हुई है, नो प्रॉब्लम। एक आवाज आ रही है कि ऐ मेरे बेटे क्या तेरी निगाहें उस गलती पर लगी है? कलाम में क्या लिखा है? जो बीत गई बातें हैं, जो गुजर गए वाकयात, उन पर सोचते, उन पर सोचते और आने वाले कल की फिक्र, और वो कल का दिन जो फिक्र है वो खुद करेगा। और यीशु मसीह को निगाह करें तो क्या सलूट है हमारे हीरो की, क्या बात है। वो क्या कहते हैं? अपनी आधी फिक्रें। हाँ जी मैं ठीक हूँ। अभी आप लोगों ने ऐसी ट्रेनिंग करनी चाहिए, कोई पादरी रफड़ी आ जाए तो उन्होंने कहना भाई साहब ऐ की कर रहे हो, उन्होंने कहना ला रहे। आप कई खादम आके इतनी तारीफ भी करते कहते आप लोग राइट पे हैं, क्या आप जवाब देते हैं एकदम से। खुदा के खादम एक कनेक्शन के अंदर बार बार पास्टर अख्तर आए हुए थे मेरे, हाँ जी पास्टर अख्तर थे, जमील नासिर साहब के शागिर्द पास्टर अख्तर थे। तो खादम बार बार हमारे बुजुर्ग सदीक भाई असिस्टेंट पास्टर बार बार रिप्लाई कर रहे थे उनकी बात का, कहते लगता है आप बहुत जानने वाले लोग बैठे हैं। तो वही क्या बात होगी ना, पे बाबे भी ना बकरियां, नारे बाबा मार रहे थे, बल्ले बल्ले सारियां दी हो रही। हालेलुया हालेलुया। ऐसे नहीं बाइबल में लिख दिया गया। खुदा के खादम ने, अब्राहम ने कहा, हमारे बुजुर्ग ने,
क्या 10 लोग होंगे तो पूरे शहर को छोड़ देगा? उसने कहा जा छोड़ दूंगा। और आज भी अगर हम में से 2 या 3 भी इस ईमान से बैठे हैं कि मैं बच जाऊंगा, मेरा घराना बचेगा, तो बाकियों पर भी अपनी रहमत में ले लेगा। हालेलुया। बतेरों को वो अपने साथ जोड़ देगा। आमीन। ऐ आदम तू अब ये आपको पता है, मुझे पता है कि हम कहाँ हैं। कहीं अपनी मर्जी में तो नहीं है। आदम जो था वो हीरो, मूसा भी हीरो। ये बदन में बड़े बड़े हमारे सामने से पर्सनैलिटीज गुजरी हैं, पर एक ही है जिसे सब नामों में से आला नाम मिला है। आया वो भी बदन में है, माँ का दूध भी पिया, माँ के पेट में भी रहा है, माँ की केयर भी की है, लेकिन अपनी मर्जी आज कुछ मैं बड़ा ख्याल करना, मैं मानू कदी कदी मानू रोटी पका के देना, कदी कदी मैं मानू पता नहीं की करके देना, पर मर्जी में ये खतरनाक हालत है। लेकिन जब तुम्हारा दिल ही मुझसे दूर है तो क्यों मुझे खुदावंद, जब तुम्हारा दिल ही मुझसे दूर है तो क्यों। लेकिन एक उम्मत ऐसी भी है जो होठों से तो मेरी, लेकिन उनका दिल मुझसे। तो आए उन नुकसान की तरफ आएंगे जो अपनी मर्जी करते हैं, जो अपनी पसंद की शादियां करते हैं, जो अपनी ख्वाहिशात के पीछे अपनी जान तक दांव पे लगा देते हैं, अपने तरीकाकार की वजह से अपने माँ बाप को पीछे छोड़ देते हैं। और कई बार ऐसे मियां बीवी भी जो कि अब देखिए, पहला निकाह किसने किया था? पहला निकाह किसने किया था? क्या उसने कहा कि मेरे पीछे पड़ के मैं दुख में सुख में तेरे साथ रहूंगी, ऐसे करवाया? बोले नहीं। फर्क क्या था? ये एक नई बात है जो खुदा के रूह ने मेरे ऊपर खोली है, आप भी इसको ले जाएं। आज जो यीशु मसीह को अपना दूल्हा और खुद अपने आप को उसकी दुल्हन कहते हैं, या अपने आप को उसके बदन का आजाद समझते हैं कि वो अंगूर का हकीकी दरख्त है और मैं उसकी, तो फिर इस बात को जो पहले आदम ने जो मिस्टेक की है, जो उसकी जिंदगी से प्रॉब्लम हो गई है, निकाह बेशक खुदा ने किया था, लेकिन एक अपनी मर्जी की करने की वजह से पाक रिश्ता दोनों ने अपनी एक ही मर्जी की। और वो क्या था? जैसे हननिया और सफीरा, उन्होंने जैसे कुछ सफीरा, चलो पता तो चल गया, सफूरा। और उन दोनों ने क्या की? एका किया। मियां बीवी ने एका, पर किस चीज के पीछे? बोले बदन की। आज भी अगर ऐसे मियां बीवी हमारे दरमियान में है जो एका तो करते हैं, शादी ब्याह दे एक होके जाना है, शादी ब्याह दे चल मैं आज मशीन लानी है, तुसी चले जो बच्चियां को लेके, ठीक है, आज परौने आ गए तुसी चले जो। हाँ जी, कई वजूहात हैं जिस पे हम खुदा की तरफ आने के लिए एका। हननिया ने और सफूरा ने भी ऐसा ही किया, और यूं फिर उसका रिजल्ट क्या निकला? बाइबल में लिखा है बारी बारी मारे गए पर एका नहीं तोड़ा। बारी बारी पहले एक मार गया, फिर दूसरी मार गई, ठीक है। तो दोनों ने एका अच्छा किया, बारी बारी मार गए, पर अपना एका नहीं तोड़िया। आज अगर किसी का शौहर मार गया गुनाह की जिंदगी में, तो बीवी आज तौबा कर ले। अगर बीवी मर गई है तो वो शौहर आज तौबा कर ले। अगर ऐसी हालतों में दोनों के बीच में अपनी अपनी मर्जी चल रही है तो आज तौबा कर ले, क्योंकि यहां पे हमारे बुजुर्ग आदम और हवा ने भी एक ही किया। एक ने खाया और फिर दूसरे को भी खिलाया, तो फिर क्या भी शिफा पा ली या मर गए? खुदा से उनकी जुदाई आ गई। लेकिन जो बात मैं कहने लगा उसी निकाह की बात, 1 मिनट रह गया मेरा या 1.5 मिनट, प्लीज सुने। जब लाकर हवा आदम के सामने लाई गई तो कौन बोला है? खुदा ने पीछे इकरार करवाया या आदम खुद बोला? आदम खुद बोला, ये तो मेरी हड्डी में से हड्डी
और मेरे गोश्त में से। आज के मियाँ बीवी, शायद पास्टर कहता है मेरे पीछे बोले जी, वो पीछे तो बोलते हैं, या कई लोग ट्रेनिंग करवाते हैं, जो निकाह दे तेरे को सुनाना है, तेरा निकाह नहीं होना। वो ये सारा कुछ क्यों कर रहे होते हैं? ताकि निकाह हो जाए, ताकि। पर बाइबल में क्या लिखा है? कैसा शौहर और कैसी बीवी। ये सब तालीमी बातें हैं जिनको हम आने वाले वक्त में सीखेंगे कि खुदा के नजदीक कैसा शौहर होना चाहिए और कैसी बीवी। खुदा से डरने वाला शौहर, और बीवी कैसी हो? नेकोकार। कैसी बीवी? ये नहीं अपनी मनमानियां करने वाली है। वो क्या है? वो गीता मेरी नेकी किसे कम ना आवे, मेरी नेकी। तो जो लास्ट चीजें रह गई थी वो फिर आज मुझे लगता है रह जाएगी, लेकिन आए जल्दी से हम देख लें। पर यहाँ पर आदम के सामने जब बीवी लाई गई तो वो किस में से ली गई थी? उसी के बदन में से। आज जो अपने आप को यीशु की दुल्हन कहते हैं, जो अपने आप को कलीसिया कहते हैं, उनको सबसे पहले इस बात से जुड़ना होगा कि ये नहीं कि पादरी मुझे इकरार कराए, मुझे इकरार करना होगा मैं तो यीशु जैसा हूँ। यीशु मसीह ने मुझे अपने जैसा पैदा किया है, उसने मुझे अपने जैसा कहा है, मैं नूर की फरजंदा हूँ। बाइबल में ऐसा लिखा भी है, जितनों ने यीशु मसीह को, उसने उन्हें खुदा के फरजंद होने का। हम चाहते तो हैं कि हमें हक मिल जाए, खुदा कितने में मेरी क्यों नहीं सुनता, पर हम ये तो कह रहे हैं मेरे बदन की जरूरतों की क्यों नहीं सुनता। कभी ये इकरार किया कि तेरे बदन का मैं अज़ा हूं, तू अंगूर का की दरख्त है, मैं तेरी डाली हूं। तू मुझे पुकार रहा है कि आदम तू कहाँ है, अजीज तू कहाँ है, तू कहाँ है। मैंने कभी इस आवाज को सुना तो जरूर, पर मैंने अपना दिल सख्त करके किस चीज में जिया हूं? अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिश। और यही आज का कलाम है। आए अपने कदमों पर खड़े हो और खुदावंद के हुजूर दुआ करेंगे कि खुदावंद आज एक बार फिर मुझे इस बात पर दिल लगाना है, ध्यान देना है, रुझान करना है। हालेलुया, हालेलुया। आए सब अपनी आंखें बंद करें, अपने आप को पेश करें कि खुदावंद मैंने तेरी आवाज सुनी है, पर आज अपने बदन के उस बुजुर्ग आदम की तरह अपने आप को छिपाता नहीं, बल्कि आज इकरार करता हूँ कि यीशु मसीह मेरा खुदावंद है, यीशु मसीह मेरा निजात देने वाला है, यीशु मसीह मेरा बचाने का वसीला है, सबब है, जरिया है। सब अपनी आंखें बंद कर लें और आए अपने हाथ उठाएं, आए अपने हाथ उठाएं और एक खूबसूरत इकरार, ईमानदारों का इकरार, गुनाहगारों का नहीं। क्योंकि कलीसिया का मतलब क्या है? यीशु का बदन। कलीसिया का मतलब क्या है? यीशु का बदन। फिर कलीसिया कौन है? बोले यीशु की दुल्हन। फिर कलीसिया कौन है? बोले मुकद्दस लोगों की जमात। तो इनका इकरार गुनाह का इकरार नहीं है, बल्कि जिसने बुलाया है, जिसने कहा है कि अब इस कलाम के वसीला से जो मैंने तुमसे किया है, तुम कौन हो? पाक हो। आए इकरार करें, जे तू परदन मेरी हामी, जे तू परदन मेरी हामी, मर जाता मैं, मर जाता मैं, मर जाता मैं बेच गुलामी। मैं तेरा करम नहीं भुल सकता, मैनू याद होवे रहते ने, मैनू याद होवे। और वो मेरे क्या है? उसने मेरी और आपकी जान बदन रूह के लिए फिदिया दिया है। और आज वो पुकार रहा है कि ऐ अजीज, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, लौटा, ऐ बनी आदम लौटा। और आए एक इकरार के साथ आज बदन के बुरे मंदे रफाकतों को, बुरे कामों को गुड बाय करें और इस बात का ऐलान करें कि उसने मुझे बुला लिया है, उसने मुझे चुन लिया है, उसने मुझे नूर का फरजंद कह दिया है।
आए एक इकरार के साथ जो ईमानदारों का इकरार है, जो कलीसिया दुल्हन का इकरार है, ना के गुनाहगारों का, इस इकरार में खुद को शामिल करें और कहें यीशु मसीह मेरे खुदावंद, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। आज एक बार फिर मेरे बचाव का, मेरे छुड़ाए जाने का, मेरे बहाल किए जाने का आपके कलाम के वसीला से प्रचार हुआ है, आवाज आई है, लेटर आया है। क्या मेरी बेटी, ऐ बनी आदम लौटा, अपने दिल को सख्त ना कर, क्योंकि मैं तेरा शाफी हूँ, मैं तेरा खुदावंद हूँ। कहे मैं इकरार करता हूँ यीशु मेरा निजात दहिंदा है, मसीहा मेरा खुदावंद है, वो मेरा असली और अबदी खुदावंद है, जो कल आज बल्कि अब तक यकसा है, वो मेरे लिए आया है। मैं इकरार करता हूँ मैं उसके बिना कुछ भी नहीं हूँ। यीशु के नाम में, उसके कलाम में, उसकी पाकीज़गी में, रहम और माफी में, मोहब्बत में कायम रहो यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। और तीसरी बार फिर कहें आमीन, और एक बड़ी शुक्रगुजारी करें, जोरदार शुक्रगुजारी। हालेलुया। अपने हाथों को ऊंचा करके हालेलुया बजाए बजाए, अपने हाथों को ऊंचा करें और बजाए। प्रेज प्रेज। आमीन, आमीन, आमीन।